I didn't know that Ankalaev had such great striking, and I'm totally shocked that he's the champion now. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द एनेक्स शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस अनकलाएव एट UFC 313 की फाइट में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होने वाला है और अनकलाएव जो चैंपियन बने हैं इसका डिवीजन के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द फाइट देयर वर 11 टेक डाउन अटेम्प्ट्स and 0 completed. There was 0 submission attempts and there were many moments जहां पर momentum shift हुआ था। Round 1 Alex Pereira का momentum था। Second round Ankalaev totally dominated the way. Third round was a mixed bag. Both of them had some moments. But Ankalaev got those rounds because he had a lot of control time. Now it was not ground control time, but still it was given to Ankalaev. The judges saw it 49-46, 48-47, 48-47 for Ankalaev and knew Ankalaev is the light heavyweight champion of the world of UFC. So when the fight started in round 1, Alex Pereira started kicking Ankalaev's calves और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थी। पहले राउंड में ही उन्होंने करीबन 17-18 किक्स, काफ किक्स करी थी which definitely hurt Ankalaev. वहां पर उनका एक डोमिनेंस दिखा and which showed why he is the champion. And round 1 went to Alex Pereira. Ankalaev came out a different kind of beast and a different man altogether. He started striking with Poton. He looked very slick. He was getting into spaces जहां पर Alex Pereira couldn't protect himself and he was hitting him, targeting his head over and over again. वहां पर इतना ज्यादा head strikes थी that Alex Pereira was rocked many times and before the bell, like 3 or 4 seconds before the bell, he was almost knocked down. जो Alex Pereira का Adesanya के खिलाफ हुआ था, exactly same Ankalaev के खिलाफ हुआ. And round 2 could have been the fight if the fight had gone on a few more seconds. लेकिन वहां पर Alex Pereira बच गए. Round 3 was a very mixed round जहाँ पर Alex Pereira was trying to fight, Ankalaev was trying to fight. So both of them had a very good fight. Calf kicks continued. Even at the second round, Alex Pereira had some calf kicks. तो round 3 तक काफी ज्यादा calf kicks land हो चुकी थी. Round 4 में Ankalaev came out and basically started wrestling, tried to take him down, and in the entire round he had it under control near the fence. Round 5 was very similar to round 4 जहाँ पर Ankalaev again tried to take him down. यहाँ पर कुछ एलेक्स पेरेरा के मूवमेंट्स थे, कुछ शॉट्स थे जो लैंड करे, कुछ काफ किक्स भी लैंड करी, बट मोस्ट ऑफ इट वाज बेसिकली Ankalaev ट्राइंग टू गेट अ टेक डाउन. अगर हम राउंड बाय राउंड देख तो फर्स्ट राउंड बिलोंग्ड टू एलेक्स पेरेरा, सेकंड डेफिनेटली बिलोंग्ड टू Ankalaev. अगर हम फोर्थ की बात करें तो इट डेफिनेटली बिलोंग्ड टू Ankalaev. फिफ्थ की बात करें and third की बात करें, these 2 rounds are debatable. Now let's discuss each fighter's performance, strategy and execution. So Alex Pereira had this clean plan that Ankalaev has been hit too much on the legs in his previous fights, so you must also do the same. वो आए और उन्होंने legs kicks शुरू करी, calf kicks शुरू करी और बहुत ही ज्यादा starting में hurt भी करा था Ankalaev को. Ankalaev ने 11 times take down attempt करा and Alex Pereira ने shockingly 11 के 11 times वो take down डिफेंड करा. सो हम जो एलेक्स पेरेरा को कंप्लीट फाइटर बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं बिकॉज ही हैजंट शोन मच ऑफ ग्राउंड गेम, वो यहाँ पर हमें प्रॉपर देखने को मिला और एलेक्स पेरेरा ने दिखा दिया कि उनको टेक डाउन करना इजी नहीं है बिल्कुल भी. ये तो थी एलेक्स पेरेरा की स्ट्रेंथ्स. लेकिन अगर हम उनकी वीकनेसेस की बात करें तो एलेक्स पेरेरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर विद हिज हैंड्स. लेकिन इस फाइट में खासकर पहला राउंड जो वो जीते थे, ही वाज वेरी लिटिल अटैकिंग विद द हैंड्स. वो सिर्फ काफ के थ्रू टारगेट कर रहे थे और बहुत ही कैजुअली कभी कभी जैब मार रहे थे, कभी कभी हुक मार रहे थे. सो ही वाज वेरी लिमिटेड विद हिज आर्मर. अगर हम उनकी सेकंड वीकनेस की बात करें तो जैसे ही Ankalaev ने फॉरवर्ड मोशन शुरू करा, Alex Pereira didn't move forward. He was fighting on his back foot, moving backwards the entire fight, and judges will never give you the fight if you do that. Third thing, Alex Pereira को राउंड 3 तक रियलाइज हो जाना चाहिए था कि if he kicks his calves, Ankalaev is going to take him down. जहां पर Ankalaev की ईगो की that he will stand up with the best striker in the UFC, वहीं पर शायद Alex Pereira की ईगो थी that I will defend the takedowns against Ankalaev. और ये उनकी वीकनेस रही कि वो फाइट को कंट्रोल नहीं कर पाए कि फाइट जाएगी कहां पर. एलेक्स पेरेरा की स्ट्राइकिंग उतनी ज्यादा स्लिक नहीं थी, उतनी ज्यादा एलीट नहीं लगी और उसके साथ साथ उतनी ज्यादा अटैकिव भी नहीं थी. अटैक था ही नहीं उनकी में, इट वाज मोर डिफेंसिव एंड समवट किक्स. अगर ग्रैपलिंग और डिफेंस की बात करें तो आई वाज टोटली शॉक्ड कि उन्होंने इतना अच्छा डिफेंस कैसे किया. Ankalaev उनको एक बार भी टैक डाउन नहीं कर पाए एंड आई बिलीव अगर इस तरह से जजेस
इनको पॉइंट देते टू डिफेंड द टेक डाउन, तो ऑब्वियसली फाइट ज्यादा क्लोज होती। 46-49 तो सेंस नहीं बनाता। ओवरऑल फाइट IQ की बात करें तो एलेक्स पेरेरा का बहुत हाई IQ रहता है इन प्रीवियस फाइट, लेकिन यहाँ पर वो शायद अंडर कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, और व्हाटएवर ही डिडंट चेंज हिज प्लान व्हेन नीडेड। जब एक पॉइंट पर 4th राउंड में ही न्यू दैट ही इज गेटिंग टेकन डाउन, एटलीस्ट एन अटैक ऑफ अ टेक डाउन, वहां पर उन्होंने कुछ और करने की कोशिश ही नहीं करी। ही kept standing against the fence. He should have known that he'd lose the fight if he keeps standing there, and he didn't change that. So I think there was a mistake from Alex Pereira's part where he didn't understand what's happening in the fight. I think Alex Pereira stuck to his game plan very strictly, which was basically attack the cuffs and defend the takedowns. Alex Pereira को ये दो चीजें बहुत बताई गई होंगी, उन्होंने दोनों ही चीजें करी। जो उन्होंने नहीं किया वो था अटैक by his hands, और वही उनको भारी पड़ा। Ankalaev की strategy थी that first he'll show that he has got elite striking, Alex Pereira level of striking in UFC, और वो करने में कामयाब रहे। Second round में he was like a beast. He was moving quick, he was moving in and out, he was not getting it. He was putting in the jab, the light hook, the body shots, the overhand, everything he was coming perfectly. So his planning, execution and strategy were just beautiful to watch. अगर grappling या फिर wrestling की बात करें, so Ankalaev is not on the other Dagestani's level. He couldn't take down Alex Pereira. हो सकता है Alex Pereira का takedown defense is on another level, but he didn't try anything different during the takedown. Just वहाँ पर जब उनको realize हुआ कि he's controlling the fence, he's controlling the fight, and maybe he can win this via decision. वहाँ पर उन्होंने कुछ नया नहीं ट्राई करा, जबकि आई बिलीव अगर कोई और दागिस्तानी फाइटर होता तो शायद वो कुछ नया ट्राई करता और फाइट को जीतने की कोशिश करता, क्विकर फिनिश करने की कोशिश करता। ओवरऑल फाइट IQ की बात करें, Ankalaev came up with a very solid plan. उनके पास काप किक्स का आंसर तो नहीं था, बट वो अपनी किक्स से आंसर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस फाइट के डिसीजन को काफी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि Alex Pereira actually won the fight. They are giving 3 rounds to Alex Pereira and 2 to Ankalaev. बहुत सारे लोग Alex Pereira से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने उतना ज़्यादा पुश फॉरवर्ड नहीं करा, प्रेशर नहीं बनाया और अटैक नहीं करा, जिसके लिए वो नोन फॉर हैं, और वो अटैक करते तो शायद जीत सकते थे। और इसके साथ साथ Ankalaev से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे इयान ब्लैकोविच की फाइट में कहा जा रहा था कि he didn't do enough to win the championship. लोग कह रहे हैं इस फाइट में भी this is a lackluster way to win, and this is not the way that a champion should win his fight. But I think of the opposite. Alex Pereira was the champion coming into the fight, and if he is the champion, he should be the more dominant fighter. He should pressure more, and he should be the one जो fight को boring ना होने दे. But Alex Pereira lost the fight in a boring fashion, so that's on him more than on Ankalaev. तो काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो Ankalaev के लिए हेट था वो अभी राइज पर है। Ankalaev ने पहले ही Alex Pereira के खिलाफ अपने आप को एक विलन बना लिया था by talking about the tire shop thing, the comments like that, and यहाँ पर उनकी somebody can call it a boring performance where he won by a decision. It was a good performance on many levels. So people are basically having a dig in the comment sections of various videos. What do you think? Do you think Alex Pereira won this fight, or was it Ankalaev who won the fight? See, जो डिसीजन मेकिंग होती है UFC में जजेस की, वो बहुत ज्यादा रेसलिंग को डोमिनेट करती है, और उसका रीजन है कि रेसलिंग एक्चुअली इन इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा स्टैमिना मांगती है, बहुत ज्यादा स्किल्स मांगती है। तो अगर आप टेक डाउन के लिए जाते हो तो आई बिलीव टेक डाउन डिफेंस पर डिफेंस के लिए पॉइंट मिलना चाहिए। अगर टेक डाउन पर पॉइंट मिल रहा है और जो बहुत हैवी पॉइंट होता है, अगर वहां पर पॉइंट मिल रहा है तो टेक डाउन डिफेंस पे भी पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन वैसा जजिंग में नहीं होता है। अब इस फाइट में अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के जजेस बहुत ज्यादा स्कोर करता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का हमने देखा बैकवर्ड मोशन था, तो Ankalaev पूरी फाइट में पुश कर रहे थे, वहां पर उनको पॉइंट मिलेगा। टेक डाउन डिफेंस की अगर हम बात करें, वहां पॉइंट अभी तो नहीं है, मे बी द रूल्स विल चेंज, बट राइट नाउ इट्स नॉट देयर। आई वुड से एट लास्ट दैट इट वाज अ फेयर डिसीजन. Ankalaev was pressuring forward and he was winning according to the rules of the game. Maybe the rules of the game support wrestlers and grapplers more, but जो केस है वो है, अगर wrestlers और grapplers को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है जजेस के द्वारा, तो बाकी फाइटर्स को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा. इट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स, इट्स नॉट कराटे, इट्स नॉट बॉक्सिंग और रेसलिंग. और वन थिंग, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू विन द फाइट. एक स्पेसिफाइड रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स का फायदा उठा सकते हो. तो यहाँ पर अगर एक रेसलर, एक ग्रैपलर आप उस रूल का फायदा उठा रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर आपको गलत लग रहा है तो आप रूल चेंज करवाओ. यू कैन नॉट से दैट Ankalaev इज रॉन्ग हियर इन विनिंग बाय द रूल्स. इस फाइट का अगर हम Ankalaev के करियर पे इम्पैक्ट पड़े तो Ankalaev is now the champion of the division. उनके पास फाइट्स है, जिरी प्रोहास्का, जमाल हिल, and he has an immediate rematch with Alex Pereira open.
सो उनके पास बहुत सारी फाइट्स हैं. He holds the power right now and it will be very interesting to see how his career goes on from here. On the other hand, Alex Pereira की बात करें तो उनके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं. अगर वो मिडिल वेट तक वेट कट करके जा सकते हैं, जो उन्होंने टीज करा था शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट के बाद, तो वहां पर तो ही कैन फाइट DDP एट 185, लेकिन वो वेट कट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है. तो आई डोंट थिंक सो ही शुड गो देयर. लाइट हैवी वेट डिवीजन की तो वहां पर ही इज ऑलरेडी बीटन मोस्ट ऑफ द पीपल, सो दैट डिवीजन ऑल्सो डजंट मेक सेंस. अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो अपने दिल से बोलने जा रहा हूँ, दिमाग से नहीं. तो मुझे एलेक्स पेरेरा के ऑरा को किसी ऐसे इंसान के सामने रखना है जो उस ऑरा को compete कर सके. And the only guy in my side is John Jones. I would love to see John Jones versus Alex Pereira. हो सकता है ये फाइट बहुत easy हो for John Jones, especially what we have seen Alex Pereira and Ankalaev fight. So John Jones वो फाइट जीत सकते हैं, ये मेरा दिमाग कह रहा है. लेकिन अगर ऑरा बाय ऑरा को कंपेयर करें तो बहुत मजा आने वाला है अगर एलेक्स पेरेरा इज पुट अगेंस्ट जॉन जोन्स, एंड जॉन जोन्स हैज आल्सो शोन इंटरेस्ट इन दैट फाइट. सो मे बी व्हाट वी कैन डू इज हैव एलेक्स पेरेरा do exactly what he did after he lost at middleweight. Come to a division higher, fight a contender there, and then fight for the title. So he gets to fight Tom Aspinall, and then he gets to fight John Jones for the unified belt. So ये था UFC 313 एलेक्स पेरेरा वर्सेस अनकलाएव का ब्रेकडाउन. आई वुड लव टू हियर कि आप लोगों का इस फाइट के बारे में क्या ओपिनियन है, और वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ द एनएक्स शो.